everyone, I welcome you all on official YouTube channel of VGM ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ official YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ATT ਕੈਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੀ 400 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ MCQ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 400 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ MCQ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੌਪ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, a solution of which of following is used to preserve biological specimens। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਪੈਸੀਮੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਵਗੈਰਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਘੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਪੈਸੀਮੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਥਾਨਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਊਟੇਨੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਊਟੇਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। हाँ जी, कमेंट सेक्शन से कमेंट करो की आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ए बी सी डी की आएगा जी, की होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जी साडे कोल। चलो जी दस दिने जी तुहाडे आंसर आ गए। आपां दसदे हां जी इसका करेक्ट आंसर है जी मिथेनल। मिथानल, मिथानल दे अंदर जिहड़ा है जी बायोलॉजिकल स्पेसिमन ਨੂੰ संभाल के रखा जाता है। किस दे अंदर रखा जाता है जी, मिथानल दे अंदर जिहड़ी है बायोलॉजिकल स्पेसिमन्स हैगे ने उन्हां ਨੂੰ संभाल के रखा जाता है। मिथानल ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਥਾਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਾਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜੀ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, -CH ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦਾ, CHO ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਥਾਨਲ ਦਾ। ਮਿਥਾਨਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, इसका दूसरा नाम है जी फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी। मिथेनल का जो दूसरा नाम है जी कॉमन नेम है जी फॉर्मेल्डिहाइड हैगा है। ते एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप की होंदा CHO। ते मिथानल है, मिथ दे अंदर कितने सी होंदे ने, एक CHO ते एक जिहड़ा है हाइड्रोजन, क्योंकि CnH2n एवें होंदा जी। ते इसका फार्मूला की बनदा जी मिथेनल का, अपने कोल बनदा जी HCHO। मिथेनल का फार्मूला की है जी HCHO। ठीक है जी। तो आ सी जी अपने पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी जी साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है। मिथानल, मिथानल दे अंदर की कीता जांदा है जी, मिथानल दे अंदर जिहड़े है बायोलॉजिकल जिहड़ी है स्पेसिमन्स हैगे ने उन्हां नूं जिहड़ी है जैविक चीज़ां ने उन्हां नूं की है जी संभाल के रखिया जांदा है। ठीक है जी। उन्हां दे अंदर इन्हां नूं संभाल के रखिया जांदा है। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2 साडे कोल, डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू। डायनेमो जेड़ा है जी मैकेनिकल एनर्जी नु किस विच बदलदा है। डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी नु किस विच बदलदा है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा नु किस विच बदलदा है। ऑप्शन ए जी ताप ऊर्जा, ऑप्शन बी है जी बिजली ऊर्जा, ऑप्शन सी जी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी है जी रासायनिक ऊर्जा। जल्दी से जल्दी कमेंट करो जी की आंसर आएगा इसका। ए बी सी डी की आएगा, ए बी सी डी। क्यों ना केड़ा आंसर जेड़ा आएगा जी, डायनेमो किस चीज नु मैकेनिकल यंत्रिक ऊर्जा नु किस ऊर्जा विच बदलदा है। डायनेमो यंत्रिक ऊर्जा नु किस ऊर्जा विच बदलदा है। तो देखो जी तुहानू मैं दस्सिया सी, जिन्हां नू मैराथन नहीं ले गए उन्हां दा मैं गारंटी नहीं कर सकती, जिन्हां ने मैराथन लाई है उन्हां नू मैं सारा समझाया होया है कि डायनेमो किस चीज नु कन्वर्ट करदा है, मोटर किस नु करदी है, अल्टरनेटर किस नु करदा है, सब चीज जिहड़ी मैं मैराथन दे अंदर दसी है। तो जेडे स्टूडेंटा ने जी फिजिक्स की मैराथन क्लास नहीं लगाई है तो वो जिहड़ी है अपने यूट्यूब चैनल तो जिहड़ी है वो मैराथन क्लास लगा सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग क्लास जिहड़ी है जी तुहाडे कोल अवेलेबल हैगी है, तो फिजिक्स की मैराथन लगा सकते हैं। तो नाले जिहड़ी है जी केमिस्ट्री की भी मैराथन जिहड़ी है अपलोड की गई है, तो वो भी जिहड़े स्टूडेंट ने नहीं देखी वो देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अपने क्वेश्चन है जी डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू।
ਡਾਇਨੇਮੋ ਯੰਤਰਿਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਨੇਮੋ ਯੰਤਰਿਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, किस दे अंदर बदलता है जी? बिजलई ऊर्जा के अंदर बदलता है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी। हुण देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 साडे कोल। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है साडे कोल। द अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज देम कहते जी अल्ट्रासाउंड वेव्स ने वो बहुत जड़े एक पेनिट्रेट मतलब कि अंदर घुस जाना, किसी चीज अंदर चले जाना। ठीक है जी, पेनिट्रेट इनटू मैटर टू ए लार्ज एक्सटेंट कहते किसी मैटर अंदर पदार्थ के अंदर बहुत जड़ी दूरी तक जड़ी अंदर चली जाती ने। इसका की रीजन है? किसी चीज के अंदर जड़े अंदर दे पास कर जाना। ठीक है ना, जी चीज किसी चीज के अंदर वो पास करती है या किसी चीज के अंदर तक चली जाती है। मान लो आ कोई अपने को मैटर है जो आप लोग बने ना तो ब्राउन आ मान लेने मैटर है, ये यूवी रेजन है इन्होंने अंदर तक चलिया जांदियां ने। इस मैटर के अंदर तक जड़ियां ने अल्ट्रासाउंड रेज चलिया जांदियां ने। तो उन्होंने पूछा है कि अल्ट्रासाउंड रेज दे अल्ट्रासाउंड तरंगां दे इस दे अंदर जाण दी की कारण है? की कारण है कि ये मैटर के अंदर इन्नी दूरी तक चली जांदियां हन। मेरा थोड़ा जिहा गला खराब है तो हो सकता तुहानूं आवाज से दिक्कत आवे, कोई गल नहीं, हौली हौली सही हो जाऊगा, आपां काम करना अपना। हाँ जी, तो अल्ट्रासाउंड वेव्स ने की है किसी पदार्थ के अंदर तक चले जाने ने, उसका की रीजन है? ऑप्शन ए है जी वेरी हाई स्पीड, उन्होंने गति तेज होंगी है। ऑप्शन बी है जी उन्होंने आवृत्ति वध होंगी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी है जी उन्होंने तरंग लंबाई वध होंगी है। ऑप्शन डी है जी आयाम वध होंदा है। इन्हां विचों किहड़ी ऑप्शन साडे कोल बिल्कुल सही है जी? उन्होंने गति तेज होंगी है, आवृत्ति वध होंगी है, वेवलेंथ तरंग लंबाई वध होंगी है, जां आयाम वध होंदा है? की कारण है? तो देखो जी आपां नूं पता है अल्ट्रासाउंड वेव्स किहड़ियां ने? अल्ट्रासाउंड वेव्स किहड़ियां ने? जिन्हां दी की है 20,000 हर्ट्ज तो उपर होण, जिन्हां दी की है ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20,000 हर्ट्ज ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ 20,000 हर्ट्ज ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਵਰਤੀ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਵਰਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। तो करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इन्हां दी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हुंदी है। की हुंदी है जी? इन्हां दी फ्रीक्वेंसी साडे कोल बहुत ज्यादा हुंदी है। तो करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत ज्यादा आवृत्ति दे कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 साडे कोल। टू बॉडीज वन हेल्ड 1 मीटर वर्टिकली अबव द अदर। कहते दो बॉडी ने एक दूजे तो 1 मीटर की दूरी ते ने, आ ते आ इन्हां दे विचकार दूरी की है जी? 1 मीटर की दूरी है। साइमल्टेनियसली है कहते इकट्ठी जरा इन्हां नूं रिलीज कीता, इक्को टाइम दोनां नूं जरा थल्ले वल छड्डिया गया। आफ्टर 2 सेकंड द फ्रीली रिलेटिव सेपरेशन ऑफ द बॉडी। कहते 2 सेकंड के बाद इन्हां दे अंदर डिफरेंस कितना रह जाएगा, इन्हां दी दूरी कितनी रह जाएगी। हुण इत्थे इन्हां ने कहा फॉल फ्रीली। फॉल फ्रीली मतलब कि फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल के अंदर तुहानूं मैं की दस्सिया सी? फ्री फॉल के अंदर की दस्सिया सी कि मास वगैरह जो चीज़ों का अपने तो कोई असर नहीं पैंदा। जो ग्रेविटी के अंदर आ रही ने तो इन्हां दे हाइट वगैरह जो मास का कोई भी फर्क नहीं पैंदा। हाइट का डिफरेंस जो है डिस्टेंस जिन्ना है उन्ना ही रहेगा। 2 सेकंड के बाद जिन्नी दूरी ते पहला सी उन्नी ही दूरी ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल करदियां ने, स्वतंत्र रूप से डिग रही ने। इसनूं कोई होर हवा जी परेशान नहीं कर रही, इसनूं भी नहीं कर रही। तो ये सिर्फ ग्रेविटी के अंदर जा रही ने, जिन्ना फोर्स ग्रेविटी इस ते ला रही है उन्ना ही उस ते लग रही है। तो की है जी ये बराबर दूरी ते ही रहणगे जी, 1 मीटर की दूरी ते ही इन्हां दा गैप उस टाइम भी होवेगा। तो 2 सेकंड के बाद भी इन्हां दे अंदर सेपरेशन कितनी होएगी जी? 1 मीटर होएगी। तो करेक्ट आंसर की बनदा है जी? करेक्ट आंसर बनदा अपने कोल ऑप्शन नंबर बी। की बनदा है जी? ऑप्शन नंबर बी जी है साडे कोल बिल्कुल करेक्ट है जी, 1 मीटर। ठीक है जी, इस दा करेक्ट आंसर की है जी 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5 साडे कोल। द इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिहड़ी अंदर फोल्डिंग हुंदी है उसनूं की कहा जाता है? देखो जी माइटोकॉन्ड्रिया बारे तुहानूं दस्सिया भी होया, मेरा मैं दोबारा तुहानूं समझा दिंदी हां जी। आपां सैल बारे पढ़िया सी तां सैल दे अंदर की हुंदा जी? माइटोकॉन्ड्रिया हुंदा है। माइटोकॉन्ड्रिया नूं आपां की कहंदे हां जी? पावर हाउस ऑफ सैल कहंदे हां। की कहंदे हां जी? पावर हाउस ऑफ सैल कहा जाता है।
क्योंकि ये पूरे सैल नूं की है जी ऊर्जा प्रदान करता है। की दिंदा है जी सैल नूं ऊर्जा प्रदान करता है। कौन जी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की करता है जी सारे सैल नूं ऊर्जा प्रदान करता है। ते ऊर्जा किस रूप विच दिंदा है? ऊर्जा दिंदा जी एटीपी दे रूप विच। किस दे रूप विच दिंदा है जी? एटीपी दे रूप विच। देखो जी तुहानूं थोड़ा डायग्राम बना के दिखा देने आ। हाँ जी आ मान लो एवें जी आए है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की पहली गल तां की है जी वो जिहड़ा डबल मैम्ब्रेन हुंदा है। की हुंदा है जी? डबल मैम्ब्रेन हुंदा है। एक बाहरली परत है जी ਉਹਦੇ अंदर, दूजी उसके अंदर इस तरह जी एक फोल्डिंग परत हुंदी है ਜਿਹੜੀ ਦੇ अंदर ਵਲੇਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀ ਫੋਲਡ ਹੋਈ ਹੋਈ परत ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਫੋਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਫੋਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ऑप्शन है जी क्रिस्टे कहा जाता है, ऑप्शन बी है जी मैट्रिक्स कहा जाता है, ऑप्शन सी है जी सिस्ट्रेन कहा जाता है, या फिर डी ग्राना कहा जाता है। की कहा जाता है जी ये ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ फोल्डिंग है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? हाँ क्रिस्टे कहते हाँ, सिस्ट्रेन कहते हाँ, या मैट्रिक्स कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। तो देखो जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ਜਿਹੜੀ फोल्डिंग ਹੁੰਦੀ है, ਜਿਹੜੀ इस तरह की फोल्डिंग वाली परत ਹੁੰਦੀ है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ क्रिस्टे। की कहते हैं जी क्रिस्टे। ऑप्शन ए जी ਸਾਡੇ ਕੋਲ बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर है जी ए क्रिस्टे कहा जाता है। की कहा जाता है जी? क्रिस्टे कहा जाता है। ते माइटोकॉन्ड्रिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? पावर हाउस ऑफ सेल ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸੈੱਲ ਦਾ ਊਰਜਾ ਘਰ। ਸੈੱਲ ਦਾ ਊਰਜਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ATP ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਸਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਿਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਨੇ, ਲਾਈਜ਼ੋਸੋਮਸ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। द फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टे कहा जाता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 साडे कोल मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज सीन इन। कहते बहु न्यूक्लियस की संभावना किस दे अंदर होती है? बहु न्यूक्लियस एक तो वध न्यूक्लियस इन्हां विचों किस दे अंदर पाए जाते हैं? इन्हां विचों किस दे अंदर एक तो वध न्यूक्लियस पाया जाता है? हाँ जी साडे कोल ऑप्शंस की ने। पहला जी ओनली स्मूथ मसल, सिर्फ जी स्मूथ मसल से स्मूथ मांसपेशियों में पाया जाता है। ओनली स्केलेटल मसल, सिर्फ ढांचागत मांसपेशियों के अंदर पाया जाता है, या दोनों में पाया जाता है, या इन्हां दोनों में ही नहीं पाया जाता। इन्हें पूछा जी जेड़ा अपने कोल है मसल्स बहु न्यूक्लियर मांसपेशियां केड़ियां ने, केड़ी टिश्यू के अंदर जेड़ा है बहु न्यूक्ली है, इन्हां विचों सिर्फ स्मूथ मसल्स ने कि ओनली जेड़ी सिर्फ स्मूथ मसल्स ने ओ ने, या फिर जेड़ी सिर्फ स्केलेटल ढांचागत मसल मांसपेशियां ने ओ ने, या दोवें ने, या दोवें विचों कोई भी नहीं है। तो देखो जी स्मूथ मसल्स केड़ियां होने ने? इनवॉलंटरी। पंजाबी च दस दिंदे स्मूथ केड़ियां होने जी? अनइच्छित। इनवॉलंटरी कहते हैं जी अनइच्छित। अनिच्छित होंगे ने जी स्केलेटल मसल केड़ियां होंगे ने? वॉलंटरी मसल जेडी अपनी इच्छा नाल चलदे ने, सवे इच्छित। एक है जी दोनों विच, इन्हां विचों कोई नहीं। तो देखो जी इन्हां पूछे एक तो वध न्यूक्लियस, एक तो वध न्यूक्लियस किस दे अंदर पाया जाता है? केड़े दे अंदर एक तो ज्यादा न्यूक्लियस हुंदे ने? जेडे अपने कोल स्केलेटल च हुंदे ने, स्मूथ च हुंदे ने, या फिर जेडी है कार्डियक सॉरी इन्हां दोवां च हुंदे ने। तो देखो जी मल्टी न्यूक्लिएट जेडी है एक तो वध जेडे न्यूक्लियस है जी वो किस दे अंदर पाए जाते हैं? वो हुंदे ने अनइच्छित दे अंदर, स्केलेटल दे अंदर। केड़ी विच मांसपेशियां दे अंदर हुंदे ने जी? स्केलेटल मांसपेशियां दे अंदर जेडे हुंदे ने। स्केलेटल मांसपेशियां दे होर भी नाम है जी, जो पेपर च कई बार पूछे स्केलेटल दी स्ट्रिप्ड लिख सकते हैं, या फिर वॉलंटरी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, स्ट्रिप्ड या वॉलंटरी भी लिखा जा सकता है। तो एक ही मांसपेशियां का नाम है जी। तो इन्हां दे अंदर क्या जी बहु केंद्री हुंदियां ने, इन्हें मल्टी न्यूक्लियस वालियां हुंदियां ने, मल्टी न्यूक्ली वालियां जेहड़ियां अपने कोल हुंदियां हन। इन्हां दे अंदर धारियां हुंदे ने। जेहड़ी स्मूथ है जी, जेहड़ी स्मूथ मसल्स हुंदियां ने उन्हां दे अंदर की है जी एक ही न्यूक्लियस हुंदा है। की हुंदा जी? इक्को ही न्यूक्लियस हुंदा है। ते तीजी तरह दी मांसपेशियां हुंदियां ने जी कार्डियक। दिली पेशियां दे अंदर भी जेहड़ा जी एक ही न्यूक्लियस
ਹੁੰਦਾ है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी ओनली स्केलेटल मसल, सिर्फ ढांचागत मांसपेशियां, पिंजर पेशियां या फिर आप कहते हैं जी अनिच्छित मांसपेशियां उन्हां दे अंदर की है जी बहु केंद्रक हुंदे ने, एक तो वध केंद्रक पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इन्हां विचों केड़ा कथन गलत है, इन्हां विचों केड़ा कथन गलत है। पहला क्वेश्चन पहला जी हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। कहंदे जे ਤੁਹਾਡਾ weight ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, तो हाई ब्लड प्रेशर ਜਿਹੜਾ है जी ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ weight ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। दूसरा जी कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। बिल्कुल सही जी, कैंसर जड़ा है जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के कारण भी हो सकता है कि अपने अंदर जेडे सेल है जी जेडे सेल है वो की है जी फॉर एग्जांपल इरेगुलर नाल बदल लग जाने। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ क्वेश्चन से ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि कैंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। थर्ड कोलेरा एंड टाइफाइड और वाटरबोर्न डिसीज। सही है जी, कोलेरा ते हैजा ते टाइफाइड पानी वाटरबोर्न डिसीज हैगियां ने पानी राही फैलदियां ने। ऑप्शन डी है जी एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय स्टेफोकोली। आ क्वेश्चन जड़ी है आ ऑप्शन सो स्टेटमेंट जड़ी है रॉन्ग है। देखो जी जे पेपर च ए तीनों बिल्कुल सही ने ते आ ऑप्शन देते तो क्रॉस करने पर कई बार कई क्वेश्चन के अंदर इत्थे और कोई ऑप्शन हुंदी है जी ज्यादा गलत हुंदी है। एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय स्टेफोकोली स्टाइफलोकोकल जड़ा बैक्टीरिया उस राही कहंदे एक्ने नहीं हुंदा। तो देखो जी जड़ा अपने को आ एंजाइम है आ बैक्टीरिया जी स्टेफिलोकी जड़ा बैक्टीरिया है ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ एक्ने हो ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ एक्ने ਦਾ ਆ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ एक्ने ਹੈ ਜੀ एक्ने ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾਲ एक्ने ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂਦਾ है तो उस नाल के जी एक्ने हो जाते ने जे अपने मुंह ते एक्ने हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस नाल एक्ने हो सकते ने, आपा नहीं कहते कि होंदे नहीं, पॉसिबिलिटी है। तो इस दे अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट की है जी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी दी IUPAC नेम ऑफ CH3CHO। जल्दी तो जल्दी IUPAC दी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन से कमेंट कर दो जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ IUPAC ਦੀ फुल फॉर्म। IUPAC ਦੀ फुल फॉर्म ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। IUPAC ਦਾ फुल फॉर्म ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ IUPAC ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ CH3CH2 ਦਾ CHO ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਨੇ 2 ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਇਥਾ ਪਿੱਛੇ CHO ਹੈ। CHO ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛੇਤਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ IUPAC ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ इथानल है। ਕੀ ਹੈ ਜੀ इथानल है। इसका IUPAC नेम क्या जी इथानल है। तो इसका दूसरा नाम क्या जी एसिड एल्डिहाइड है जी। इसका दूसरा नाम क्या जी एसिड एल्डिहाइड है। IUPAC नेम इथानल है तो जो नॉर्मल कॉमन नेम हो गया जी एसिड एल्डिहाइड है। तो इन्होंने अपन पूछा IUPAC पूछा तो इसका आंसर क्या आएगा जी इथानल आवेगा। क्या आएगा जी इथानल आवेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने को 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की कहता है जी द एलिमेंट हुज ऑक्साइड कैन टर्न फेनोफिथिलीन सॉल्यूशन पिंक। कहंदे इन्हां विचों किहड़े एलिमेंट दे जेड़े है किहड़ा एलिमेंट है जिस दा ऑक्साइड फेनोफिथिलीन नु पिंक कर दिंदा है। फेनोफिथिलीन नु की करदा है जी पिंक कर दिंदा है। किहड़ा ऑक्साइड है जेड़ा कि फेनोफिथिलीन नु पिंक कर दिंदा है? क्वेश्चन पूछे गए जी ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਫੇਨੋਫਿਥਲੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫੇਨੋਫਿਥਲੀਨ ਪਿੰਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਨੋਫਿਥਲੀਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੇਨੋਫਿਥਲੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਫੇਨੋਫਿਥਲੀਨ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ पिंक दिंदी है। ते एसिड नाल की है जी कलरलैस रहती है। एसिड नाल की है जी कलरलैस हुंदी है। आ तुहानू पता ही होएगा जी सानू।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਟਲ ਤੇ ਐਸਿਡ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਫੇਨੋਫਿਥਿਲਿਨ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸੀਅਮ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦਾ। The element whose oxide, ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਫੇਨੋਫਿਥਿਲਿਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਫੇਨੋਫਿਥਿਲਿਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫੇਨੋਫਿਥਿਲਿਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਟਾਸੀਅਮ ਦੇ ਖਾਰ ਆਕਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸੀਅਮ, N ਐਂਡ K, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग शेल। कहंदा एक सॉल्यूशन रिएक्ट करदा है किस नाल जी, एग सेल नाल। तो पहला तुहानू पता होना चाहिए जी एग सेल किस दे बने होंदे ने जी, कैल्शियम कार्बोनेट दे बने होंदे ने। एग सेल किस दे बने होंदे ने जी, कैल्शियम कार्बोनेट दे बने हुए होंदे हैं। आता तुहानू सारे नू पता ही है जी एग सेल दे अंदर कहंदा कैल्शियम कार्बोनेट, कहना ये गिव ए गैस दे टर्न लाइव वाटर मिल्की। कहते कैल्शियम कार्बोनेट दे प्लस एक गैस दी गई है, इसमें क्या है नहीं, एक सॉल्यूशन नाल रिएक्ट कराया गया। एक सॉल्यूशन है उसका नाम नहीं पता, कहते इसमें एक सॉल्यूशन नाल रिएक्ट कराया गया जिस कारण एक गैस पैदा हुई जिन्हें लाइव वाटर नु मिल्की करता। किस नु मिल्की करता जी, लाइव वाटर नु चुने दे पानी नु मिल्की कर दिता है। तो एदा करेक्ट आंसर की है, वो सॉल्यूशन की है। तो देखो जी लाइव वाटर नु मिलके कौन कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस जो ये रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होएगी। की पैदा होएगी जी, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होएगी। तो देखो जी जो सोडियम क्लोराइड से लिंक नाल करेगा तो इसका कोई असर नहीं होएगा, क्योंकि सोडियम जो है तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये सोडियम नु उसके साथ तो अलग नहीं कर पाएगी। ठीक है जी, तो पहली ऑप्शन तो होगी कैंसर। ऑप्शन बी देखते हैं जी, CaCO3 प्लस HCl। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਜੀ CaCl2 CaCl2 बन गया जी CaCl2 नाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी CO2 प्लस पीछे की रह जाएगा जी, पानी रह जाएगा। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाल रिएक्ट करेगा, किस नाल रिएक्ट करेगा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाल। जो कैल्शियम कार्बोनेट नु हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे नाल रिएक्ट करवाया जाएगा, जो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है जी, ताकि होएगा जी अपने को कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा, नाले जी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो नाले जरा जी पानी पैदा होएगा। की होएगा जी, नाले ही अपने को पानी पैदा होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है जी, तो जेड़ा अपने को कार्बन डाइऑक्साइड है एक ही कर दिया जी लाइव वाटर नु मिल्की कर दिंदी है, दुधिया कर दिंदी है चूने दे पानी दे विचों। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਜੀ ਦੁਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ HCl। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11। What type of chemical reaction take place when electricity is passed through water? कहते ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ कमेंट से कमेंट करो, जल्दी तो जल्दी देखो स्टूडेंट्स तुसी कमेंट सेक्शन से कमेंट जरूर करया करो, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2000 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਾਇਓ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। टॉपिक वाइज क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2000 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਜੀ 2000 ਪਲੱਸ
ਤੇ ਇਹ 2000 ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2000 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਸਟ 500 ਰੁਪੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। 8 ਜਸਟ 500 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਇਓ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ अलग है जी, केमिस्ट्री ਦੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ अलग-अलग ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2000 ਪਲੱਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਜਸਟ ਓਨਲੀ 500 ਰੁਪੀਜ਼। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2000 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਤੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ 40 ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਆ ਗਏ, 80 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ 200 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ऑप्शन ए है जी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन मिलती है, ऑप्शन बी है जी कॉम्बिनेशन संयोजन मिलती है, ऑप्शन सी है जी डीकंपोजिशन विखंडन क्रिया मिलती है, ऑप्शन डी है जी डबल डिस्प्लेसमेंट दोहरी विस्थापन क्रिया होती है। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਟਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਆਇਨ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਆਇਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਈ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अपघटन रिएक्शन ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अपघटन ਜਾਂ ਵਿਖੰਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अपघटन ਜਾਂ ਵਿਖੰਡਨ। अपघटन ਜਾਂ ਵਿਖੰਡਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, मोलिकुलर कंपाउंड आर यूजली फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन कहता कि जेडे मोलिकुलर कंपाउंड है सॉरी जेडे मोलिकुलर कंपाउंड हैगे ने जी अणुवी बंधन ने अणुवी यौगिक ने। अणुवी यौगिक किस चीज नाल बनदे ने, किहना चीजां दे जेडे है कॉम्बिनेशन नाल जेडे है अणुवी यौगिक बनदे ने। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਣੂਵੀ ਯੌਗਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਧਾਤ ਤੇ ਇਹ ਧਾਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣੂਵੀ ਯੌਗਿਕ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੋ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੋ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, टू डिफरेंट नॉन मेटल दो वखरियां ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਣੂਵੀ ਯੌਗਿਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, Which of following energy is observed during the change of state of substance।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਹੀਟ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੀ ਹੀਟ ਕਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੰਟਡ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਰਾਥਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਗਰੰਟਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ એનર્ਜੀ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਸੋਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਤਾਪ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਪੁੰਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੁੰਜ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੁੰਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਤਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ 70 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ ਤੇ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਂਟ ਹੀਟ। ਸੌਰੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ which of the following has the largest inertia। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੜਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੜਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੜਤਾ ਹੈ। ਜੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜਤਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਜ਼ਰ ਆਫ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਸ ਵਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਪੁੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੜਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪਿਨ ਦਾ ਪੁੰਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੈਨ ਦਾ ਵੀ ਪਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਦਾ फिजिक्स बुक का पेन तो ज्यादा है, तो एक स्कूल बैग का फिजिक्स की बुक तो भी ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, स्कूल का बैग जिहड़ा है उस दे अंदर की जड़ता सब तो वध हुंदी है। लार्जेस्ट इनर्शिया जिहड़ा है अपने कोल स्कूल बैग के अंदर हुंदा है। किस दे अंदर हुंदा जी? एक स्कूल बैग के अंदर जिहड़ा इनर्शिया है जी वो सब तो वध पाया जाता है। लार्जेस्ट इनर्शिया अपने कोल स्कूल बैग के अंदर हुंदा है। अच्छा जी 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर डी, योर स्कूल बैग। तुहाडे स्कूल दे बस्ते दा भार जिहड़ा पुंज ज्यादा हुंदा है, इसलिए उसदी जड़ता भी की है जी ज्यादा हुंदी है। उसदी जड़ता भी की है जी ज्यादा हुंदी है। कमेंट सेक्शन च कमेंट करो कि जड़ता दा नियम सब तो पहला किसने दिता सी? जड़ता दा नियम सब तो पहला किसने दिता सी? मैं दस्सिया होया जी एमसीक्यू सीरीज ते मैराथन दोनों च दस्सिया है। जड़ता दा नियम किसने दिता सी सब तो पहला? हाँ जी तुसी कमेंट करो। आप आगे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक आयरन का जेड़ा हीटिंग एलिमेंट ऑफ किस दा बनया हुंदा है? जेड़ा प्रेस है बिजली प्रेस दे अंदर ताप पैदा करने वाला जेड़ा है एलिमेंट है तत्व है वो किस चीज दा बनया हुंदा है? ताप पैदा करने वाला तत्व किस चीज दा बनया हुंदा है? ऑप्शन ए है जी तुहाडे कोल कॉपर, ऑप्शन बी है जी नाइक्रोम, ऑप्शन सी है जी एल्यूमीनियम, ऑप्शन डी है जी आयरन। नाइक्रोम, एल्यूमीनियम, कॉपर, तांबा, आयरन, लोहा इन्हां विचों किस चीज दा बनया हुंदा है जेड़ा कि हीटिंग एलिमेंट हुंदा है प्रेस दे अंदर? तां ओह हुंदा जी अपने कोल नाइक्रोम दा। किस दा हुंदा जी? नाइक्रोम दा। भी तुहानूं दस्सिया होया मेरा जेहड़ी आपने मेरा था कि नाइक्रोम दा जेड़ा जी बनया हुंदा है। प्रेस दा हीटिंग एलिमेंट किस दा बनदा है जी? नाइक्रोम दा बनदा है। क्यों बनदा है जी? तो देखो जी जेड़ा नाइक्रोम है जेड़ा अपने कोल नाइक्रोम है जी उसकी जेड़ी रेजिस्टिविटी है उस दे अंदर जेड़ा प्रतिरोधकता है जी वो बहुत ज्यादा हुंदी है, हाई रेजिस्टिविटी हुंदी है। ठीक है जी। इस दे अंदर प्रतिरोधकता ज्यादा हुंदी है, उच्च प्रतिरोधकता हुंदी है। जे रेजिस्टिविटी हाई है तो जो करंट लगेगा तो हीट भी ज्यादा पैदा करेगा ना। करंट ਨੂੰ रोकण ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ। ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। 15 ਨੰਬਰ क्वेश्चन ਦਾ करेक्ट आंसर की है जी साडे कोल 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम। नाइक्रोम नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 16। A soft iron bar is inserted inside a current carrying solenoid। कहंदे करंट कैरिंग सोलेनोइड दे अंदर एक करंट कैरिंग सोलेनोइड दे अंदर की है जी एक जड़ी है आयरन दी सॉफ्ट बार जड़ी है बार जड़ा पाया गया कि जी इस दे अंदर की है जी एक नरम लोहे दी जेड़ा है छड़ जड़ी वो पाई गई है। एक नरम लोहे दी छड़ पाई गई है तो की होएगा इस दे अंदर चुंबकीय क्षेत्र ते की असर पेगा? कहते जो सोलेनोइड दे अंदर आप एक नरम लोहे दी छड़ पाते हां, सोलेनोइड दे अंदर की है जी नरम लोहे दी छड़ पाते हां तो उस ते की असर पवेगा? ता उस दे चुंबकीय क्षेत्र ते असर की पवेगा? आ मैं तुहानू पहले ही कहा सी जी मैराथन क्लास दे अंदर मैराथन क्लास जेडी एक बार तुसी फिजिक्स दा सेकंड पार्ट है जी वो जरूर लगाओ क्योंकि जे तुसी वो सेकंड पार्ट लगाया है ना तुहाडे बहुत सारे डाउट क्लियर होणगे ते आराम नाल ओदे अंदर तुहाडे 5-6 नंबर 3-4 क्वेश्चन जेडे जी फिजिक्स दे आए होणगे। सेकंड जेडी मैराथन क्लास है ओदे अंदर तुहानू आराम नाल 4-5 3-4 प्रश्न जेडे जी देखण नू मिलणगे। इसलिए क्लास जेडी तुसी जेडे जरूर लगा के देखियो। फिजिक्स दी मैराथन दा जेड़ा पार्ट 2 आपा बनाया है उस दे अंदर आप चैप्टर कितने जेडे रहंदे होए सी ते तीनों ही चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है ते मैं तुहानू बहुत डिटेल नाल डीपली कराया है जेडी एग्जाम च क्वेश्चन पूछे जा सकदे ने। इस क्वेश्चन का आंसर दो जी कि जदों आप एक सोलेनोइड दे अंदर एक नरम लोहे दी छड़ पाते हां तो बिजली चुंबकीय क्षेत्र ते की असर पैंदा है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी विल इंक्रीज। तो चुंबकीय क्षेत्र की जी साडे कोल वध जांदा है जदों नरम लोहे दी छड़ नू आप सोलेनोइड दे अंदर पाते हां तो चुंबकीय क्षेत्र की जी साडे कोल वधदा है। चुंबकीय क्षेत्र की जी वधदा है। देखो जी मैं तुहानू दस्सिया है कि सोलेनोइड दे बाहर चुंबकीय क्षेत्र किस तरह हुंदा है जी? छड़ चुंबक वर्गा हुंदा है। किस तरह हुंदा है जी? छड़ चुंबक वर्गा हुंदा है।
ठीक है जी। छड़ चुंबक वर्गा चुंबकी खेतर होता है इसके बाहर, तो इसलिए जब आप इसके अंदर पावांगे बाहर छड़ पावांगे लोहे दी नरम लोहे दी, तो इसका जड़ा है चुंबकी खेतर जड़ा है जी वो की है जी बढ़ जाएगा। इसका चुंबकी खेतर की है जी बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी विल इंक्रीज, की होएगा जी बढ़ेगा, इंक्रीज होएगा। करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी एक ही है जी अपने को इंक्रीज हो जाएगा जो सोलेनोइड के अंदर नरम लोहे की छड़ तो पाया जाता है तो चुंबकी खेतर ते की असर पैंदा है तो चुंबकी खेतर साडे कोल बढ़दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 17 साडे कोल ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद मिरर सरफेस। कहंदे एक जेडी है आपतित किरण है जो दर्पण ते पैंदी है तो उसते 90 डिग्री का कोण बनांदी है। कितने डिग्री का कोण बनांदी है जी 90 डिग्री का कोण शीशे नाल बनांदी है। किस नाल बनांदी है? शीशे नाल 90 डिग्री का कोण बनांदी है। तब परावर्तित किरण का कोण कितना होएगा? तब परावर्तित किरण का कोण कितना होएगा? हुन इस क्वेश्चन के अंदर गारंटीड है 50% स्टूडेंट ता ना जल्दी नाल गलती कर दिंदे काली काली च कि हां जी सानू दस्या होया है इंसिडेंट कोण ते रिफ्लेक्शन कोण बराबर हुंदे ने। सानू ता इतना पता है जी आपतित कोण बराबर होता परावर्तित कोण दे। आ गलती बहुत स्टूडेंट करते हैं, मैं बहुत स्टूडेंट देखे जेडे गलती कर जाते हैं आन क्वेश्चन आने दे बावजूद आपतित कोण ते परावर्तित कोण बराबर होंदे इन्नी गल याद रखदे हैं पर ओ आ चीज याद नहीं रखदे आपतित कोण हैगा केड़ा है किसनु कहंदे आपतित कोण। आपतित कोण कहंदे हां जिन्ना आ किरण नॉर्मल दे नाल एंगल बनांदी है। फॉर एग्जांपल आप इथे बनाने आ आई किरण किरण आई शीशे नाल टकराई वापस मुड़ गई। ठीक है जी इथे होंदी है नॉर्मल ते आपतित कोण केड़ा हुंदा है जेड़ा किरण नॉर्मल नाल बनांदी है उसनु कहंदे आपतित कोण। आ शीशे नाल बना रही है किस नाल बना रही है शीशे नाल। जल्दी जल्दी से कहणगे 90 डिग्री सानू तां आंदा इन्ना सोका प्रश्न आया सी पेपर च बाद च देखदे असि गलत कराई फिर कहंदे सानू तां टीचर ने गलत कराया है आपतित कोण उन्हां ने कहा सी बराबर हुंदा है ते शीशे नाल कोण बनदा उसनु आपतित नहीं कहंदे आपां कहंदे जेड़ा नॉर्मल नाल कोण बनदा वो हुंदा आपतित कोण। ठीक है जी। आ कोण आपतित है ते आ परावर्तित है हुंदे दोनों बराबर है ते हुण देखो आ नॉर्मल नाल कितने दा बना रहे हैं नॉर्मल खुद 90 डिग्री दी होती है इट मींस आपतित किरण ते नॉर्मल की है इको चीज ते आ गई आ नॉर्मल सी इसे चीज ते क्या आ गया अपने आपतित किरण आ गई क्योंकि नॉर्मल 90 डिग्री का कोण बना दिया इस नाल शीशे नाल ते आपतित किरण भी 90 डिग्री का बना रही है दोनों सेम आ गया ते आपतित किरण ते नॉर्मल दा कोण कितना होया जदों एक रेखा दूसरी रेखा दे ऊपर आ जाए तो उन्हां विचकार कोण कितना हुंदा है 0 डिग्री ते इन्हां विचकार कोण 0 डिग्री दा होया। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया 0 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होएगा जी 0 डिग्री होएगा। तो करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। ठीक है जी 17वें क्वेश्चन का आंसर अपने को ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री होवेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 18 साडे कोल हां जी 18वां क्वेश्चन की कहता है the color of white light which is deviated the maximum on passing through the glass prism। कहते ग्लास प्रिज्म तो जब सफेद प्रकाश ਨੂੰ लगाते हैं तो डेविएट होके सतरंगा ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦਾ है। ठीक है जी सतरंगा ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟਦਾ है ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਵੀਏਟ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਲਨ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਏਗਾ। ऑप्शन ए है जी ब्लू ऑप्शन बी है जी इंडिगो ऑप्शन सी है जी रेड ऑप्शन डी है जी ऑरेंज। ब्लू इंडिगो रेड ऑरेंज जल्दी तो जल्दी आंसर दो जी केड़े रंग दे अंदर विचलन सब तो ਵੱਧ होएगा। तो देखो जी इसका करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी इंडिगो। इंडिगो कलर जो है जी सब तो ज्यादा विचलित होएगा क्यों होएगा की रीजन है ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ इंडिगो दी है। तो याद मैं दसिया है मैराथन क्लास के अंदर भी दसिया है जी कि आप याद रखते हैं विबग्योर। ठीक है जी विबग्योर के अनुसार की है जी आ वेवलेंथ बदल दी है इंक्रीजिंग ऑर्डर है तरंग लंबाई बदलती है सब तो घट तरंग लंबाई उस तो वध तरंग लंबाई उस तो वध जिवें जिवें इधर जाते तरंग लंबाई बदल जाती है। तो याद रखियो जिन्नी तरंग लंबाई वध है जिन्नी तरंग लंबाई वध होएगी उन्ना ही कलर जेड़ा है कट डेविएट होएगा उन्ना ही कलर कट खिंडेगा। आप पता है ना तुहानू उन्ना ही कलर जेड़ा है कट खिलरेगा कट विचलन होएगा। ते देखो जी इंडिगो की तरंग लंबाई कट है तो आ वध विचलित होएगा तो इस दी करेक्ट आंसर बनदी है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी इंडिगो की बनदा है जी
इंडिगो कलर जिहड़ा है जी साडे कोल सब तो वध जिहड़ा विचलित होवेगा, जिस दे अंदर सब तो वध जिहड़ा डेविएशन आएगा वो क्या जी इंडिगो है। तो जे सारियां दे अंदर पूछ ले सत्तां दे अंदर तो सब तो वध की होएगा जी वॉयलेट होएगा, किहड़ा होएगा जी वॉयलेट। ते सब तो घट किहड़ा होएगा जी रेड, सब तो घट किहड़ा होएगा जी रेड होवेगा, सब तो घट किहड़ा है जी रेड होवेगा। तो इस क्वेश्चन दी करेक्ट आंसर बनदी है जी अपने कोल ऑप्शन नंबर बी इंडिगो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने कोल क्वेश्चन नंबर 19, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। आप पिछली बार पेपर च आया हुआ प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर नु किस यंत्र राही मापया जाता है, ब्लड प्रेशर नु किस राही मापया जाता है। तो इस द करेक्ट आंसर है जी सफगैनोमीटर। की है जी इस द करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी सफगैनोमीटर जेड़ा है जी ब्लड प्रेशर मापन लई वरत्या जाता है। बीपी नु जेड़ा है सफगैनोमीटर राही मापया जाता है। किस राही मापया जाता है जी सफगैनोमीटर राही बीपी नु जेड़ा मापया जाता है। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी सफगैनोमीटर। बैरोमीटर नाल की मापते हैं जी, बैरोमीटर नाल आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। तो दस देंगे जी वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जेड़ा है वायुमंडलीय दबाव जेड़ा है वो मापते हैं आप बैरोमीटर राही। ठीक है जी। फोटोमीटर राही की मापते हैं जी, देखो जी फोटोमीटर मापती है जी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रेडिएशन की मापती है जी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी स्ट्रेंथ मापती है किस चीज विचकार मापती है जी, ए मापती है जी अपने को अल्ट्रावायलेट रेज तो इंफ्रारेड रेज दे अंदर, किस दे अंदर जी अल्ट्रावायलेट यूवी टू इंफ्रारेड आईआर दे विचकार जेडी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जी वो मापती है फोटोमीटर मापदा है। ठीक है जी, कौन मापदा है जी फोटोमीटर राही आपा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मापी जाती है जी यूवी टू आईआर अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड किरणा दे विचकार। ठीक है जी, इन्हां दोवां दे विचकार जेडी है आ मापी जाती है किस राही फोटोमीटर राही। ते मैनोमीटर जी बैरोमीटर की तरह ही हुंदा है। मैनोमीटर भी की है जी वायुमंडलीय दबाव मापन लई वरत्या जाता है। ते किसी जार दे अंदर जेडी आपा गैस भरती तो उस दे अंदर जेड़ा प्रेशर मापन लई भी मैनोमीटर दी यूज किया जाता है। मैनोमीटर ते बायोमीटर सेम जे ने जी। ठीक है, तो मैनोमीटर की वरतों कोई जार दे अंदर बंद है, कोई कंटेनर दे अंदर गैस है तो उसका प्रेशर मापन लई भी की जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापन दे लई भी मैनोमीटर की वरतों की जाती है। ठीक है जी, तो इन्होंने ब्लड प्रेशर पूछा सी तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी सफगैनोमीटर। सफगैनोमीटर जेड़ा है जी आपां ब्लड प्रेशर नु मापन लई वरतदे हां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडे कोल क्वेश्चन नंबर 20 as the last question, starfish belong to phylum। starfish केड़े phylum नाल belong करदी है, starfish इन्हां विचों किस phylum नाल संबंधित है। ऑप्शन ए है जी मोलस्का, ऑप्शन बी है जी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी है जी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी है जी इकिनोडर्मेटा। तो स्टारफिश इन्हां विचों किस नाल बिलोंग करदी है, स्टारफिश इस नाल किस नाल बिलोंग करदी है। तो करेक्ट आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर डी इकिनोडर्मेटा। इकिनोडर्मेटा नाल रिलेटेड हुंदी है स्टारफिश। इन्हां सारे बारे थोड़ा थोड़ा दस दिंदी है जी तुहानू। पहला जी मोलस्का, मोलस्का केड़े हुंदे ने इन्हां दे मांस दे पैर हुंदे ने, मांस दे पैर हुंदे ने। शरीर जेड़ा जी इन्हां दा सॉफ्ट हुंदा है, नरम शरीर हुंदा है। की हुंदा जी नरम शरीर हुंदा है। ते इन्हां दा आकार जेड़ा है जी एक सूक्ष्म जीव तो लेके एक जेड़े 50 फुट दे ऑक्टोपस जिन्ना हुंदा है। ऑक्टोपस की है जी साडे कोल एक मोलस्का है क्योंकि उसदे पैर की हुंदे एवें दा हुंदा ना ऑक्टोपस, उसदे पैर जेड़े मांस दे हुंदे एवें। ठीक है जी, ते ऑक्टोपस की है जी साडे कोल मोलस्का दे अंदर आंदा है। ठीक है जी, अपने को दूसरा जी सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा दे अंदर अपने को केड़े जीव आंदे ने जी, सिलेंट्रेटा दा दूसरा नाम की है जी अपने को नाइडीरिया। सिलेंट्रेटा नु होर की कहंदे आ जी आपा नाइडीरिया भी कहंदे आ। ठीक है जी, सिलेंट्रेटा कहंदे ए जली हुंदे ने, ए एक्विटिक हुंदे ने, जल दे अंदर रहने वाले हुंदे ने। ते इन्हां दे अंदर जेड़ा है जी इन्हां दे अंदर ना तो कोई लहू गेड़ प्रणाली हुंदी, ना साह प्रणाली हुंदी, ना मल त्याग प्रणाली हुंदी, कोई भी चीज विकसित नहीं हुंदी। ते ए जेड़े है जी अपने कोल जिवें हाइड्रा कोरल एक ही है जी सिलेंट्रेटा अंडर आंदे ने, हाइड्रा कोरल ए सारे के ने जी सिलेंट्रेटा ने। आर्थ्रोपोडा के ने जी पहला तो सब तो याद रखियो बिगेस्ट फाइलम है, सब तो बड़ा फाइलम हुंदा है कौन आर्थ्रोपोडा, सब तो वध पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा। ते आर्थ्रोपोडा तो की याद रखना जॉइंटेड लेग, पैरां दे अंदर जोड़ हुंदे ने। जेड़े जीवां दे अंदर जेड़े कीट इंसेक्ट दे अंदर तुहानू पैरां दे अंदर जोड़ दिखाई देंदे ने वो सारे की ने जी आर्थ्रोपोडा अंदर आउंदे ने। किस दे अंदर आउंदे ने जी आर्थ्रोपोडा दे अंडर आउंदे हैं। मकड़ी होगी अपने को केकड़ा कॉकरोच सारी के जी
ਆਰਥਰੋਪੋਡਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਕੁਇਨੋਡਰਮੇਟਾ। ਇਕੁਇਨੋਡਰਮੇਟਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਕੁਇਨੋਡਰਮੇਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਫ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਕੁਇਨੋਡਰਮੇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਕਿਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਕੁਇਨੋਡਰਮੇਟਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੁਇਨੋਡਰਮੇਟਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਇਕੁਇਨੋਡਰਮੇਟਾ। ਤਾਂ ਆ ਸਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪ 20 ਕੁਐਸਚਨ। थोड़ी बहुत वॉइस के अंदर दिक्कत है तो उसलिए सॉरी जी, क्योंकि गला मेरा खराब है। पर ਤੁਹਾਡੇ एग्जाम ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ MCQ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆ ਸਨ ਦੇ ਟੌਪ 20 ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।